ہلو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے کچھ منتخب سوالات لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو بی پی ایس سی پوائنٹ آف ویو سے کافی امپورٹنٹ کا حامل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کوشچن، فردوس بری کا مصنف کون ہے؟ عبدالحلیم شرر، رتن ناتھ سرسار، کرش چندر، نذیر احمد۔ تو اس میں کریکٹ آپشن اے ہوگا، عبدالحلیم شرر۔ دوسری ایک نظم ہے، دو عشق کس کی نظم ہے؟ علامہ اقبال، فیض احمد فیض، شکبست، مجاز۔ تو اس میں کریکٹ آپشن بی ہوگا، آپشن 2، فیض احمد فیض کی یہ نظم ہے۔ کوشچن نمبر 3، میلہ گھومنی کس کا افسانہ ہے؟ منشی پریم چند، اسمک چغتائی، علی عباس حسینی، منٹو۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں علی عباس حسینی کا افسانہ نگار ہیں اور یہ ان کا افسانے حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ میلہ گھومنی علی عباس حسینی کا افسانہ ہے۔ کریکٹ آپشن 3۔ میں چمن میں گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں۔ اس شعر میں پوچھا جا رہا ہے اس شعر میں کون سی صنعت کا استعمال ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں آپشن نمبر 1 تضاد، اس میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں ضد پایا جا رہا ہو، اس لیے یہ آپشن غلط ہے۔ دوسرا ہے تلمیح، تلمیح کے معنی ہوتا ہے اشارہ کرنا۔ جب شاعر اپنے کلام میں کسی واقعے یا کسی قصے کی طرف یا قرآن پاک کی آیتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے تو وہاں پہ صنعت تلمیح ہے، یہ بھی نہیں۔ لف و نثر، لف و نثر کے معنی لپیٹنا اور پھیلانے کے معنوں میں ہے۔ ہم اوپر کے اشعار میں کوئی بھی ایسا لفظ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کچھ لفظ رکھا گیا ہو، اس کی مناسبت سے دوسرے مصرعے میں کوئی شعر کہا گیا ہو۔ تو یہ آپ کا جو ہے آنسر نمبر 4 مرآت النظیر ہے اس میں۔ آگے دیکھیے، اگلا کوشچن پوچھا گیا ہے کہ رومان اور انقلاب کا حسین امتزاج کس شاعر کے یہاں ملتا ہے؟ تو اس طرح کے کچھ کوشچن ضرور امتحان میں آتے ہیں کہ شاعر و ادیب کے جو خطاب، القاب یا اس کی پہچان شناخت پر ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوش ملی آبادی کو شاعر رومان بھی کہا گیا، شاعر انقلاب، چونکہ انہوں نے انقلابی نظمیں لکھی ہیں۔ ویسے شاعر رومان اختر شیرانی کو بھی کہا جاتا ہے، تو نمبر 1 پہ اختر شیرانی۔ تو اس میں جوش ملی آبادی کو رومان اور انقلاب کا حسین امتزاج بتایا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کوشچن نمبر 6، کربل کتھا کس کی تصنیف ہے؟ فضل علی فضلی کی ہے، آپشن نمبر 2 اس میں صحیح ہوگا۔ کوشچن نمبر 7، مرزا ظاہر دار بیگ کس کتاب کا کردار ہے؟ اس میں جو ہے آپ کا کریکٹ آپشن جو ہے توبۃ النصوح ہوگا۔ اس میں توبۃ النصوح، نصوبی نام کا کردار ہے، اسی آپشن اے کریکٹ ہوگا۔ دوسرا سوال یہ بہت بار امتحان میں پوچھا گیا ہے، غالب کا سن وفات کیا ہے؟ تو اس میں 1870، 1869، 1867، 1872۔ تو یہ جو ہے 1869 میں ان کی وفات ہوئی، آپشن نمبر 2۔ کوشچن نمبر 9، کس شاعر نے آگرہ کو زیادہ شہرت بخشی؟ یہ غالب، میر، نذیر، جذبی۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں غالب آگرہ میں ضرور پیدا ہوتے ہیں، بچپنے میں دہلی آ گئے۔ میر تقی میر جو ہے پیدا تو ضرور ہوتے ہیں وہاں آگرہ میں، لیکن یہ انہوں نے دہلی میں، پھر دہلی کے بعد لکھنؤ کو زینت بخشی۔ نذیر اکبر آبادی یہ دہلی میں پیدا ضرور ہوتا ہے، لیکن بچپنے میں یہ آگرہ چلے گئے اور اپنے نظموں میں اپنے آپ کو آگرہ ہی کو بتایا ہے، تو انہوں نے نذیر اکبر آبادی کی ذات ہے جس نے آگرہ کو زیادہ شہرت بخشی۔ آنسر نمبر 3۔ کوشچن نمبر 10، اصلاح زبان کے لیے کون سا شاعر مشہور ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں آتش و ناسک کا شمار جو اصلاح زبان دبستان لکھنؤ سے وابستہ ہیں، تو اس میں آپشن نمبر 3 ہوگا، الناسخ۔ کوشچن نمبر 11، ذکر میر کیا ہے؟ غزلوں کا مجموعہ، تذکرہ، تنقیدی کتاب، خود نوشت سوانح۔ تو اس میں کریکٹ آپشن 4 ہوگا، خود نوشت سوانح۔ یہ ذکر میر جو ہے میر تقی میر کی خود نوشت ہے۔ کوشچن نمبر 12، محاسن کلام غالب کس کی تصنیف ہے؟ یہ کتاب بار بار ایگزام میں پوچھی جا رہی ہے، محاسن کلام غالب۔ یہ کریکٹ آپشن، آپشن اے ہوگا، عبد الرحمن بجنوری۔
क्वेश्चन नंबर 13, हमारे आगे जब तेरा किसों ने नाम लिया, दिल सितम ज़दा को हमने थाम थाम लिया। ये शेर मीर तकी मीर आतिश दर्द मोमिन। तो देखते हैं कि मीर तकी मीर जो है उर्दू अदब में क्लासिकल शायर हैं और उन्होंने अपनी गज़लों में मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया। जैसे देखिए लफ्ज़ किसो यानी किसी ने, इसका सही होगा, है ना। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं ये शेर जो है मीर तकी मीर का है। करेक्ट ऑप्शन ए। ईजाज़ व इख्तिसार किस मसनवी की खुसूसियत है? जैसा कि हम जानते हैं ईजाज़ व इख्तिसार गज़ल के लिए मुस्तक है, लेकिन ये ईजाज़ व इख्तिसार मसनवी के लिए जो कहा गया है वो इस मानों में कि चूँकि गुलज़ार नसीम में पंडित दयाशंकर नसीम ने कई हज़ार अशार पे मुश्तमिल मसनवी लिखा था, जिस पे आतिश ने कहा था कि भैया ये हम पढ़ेंगे कि हम आपके उस्ताद हैं, या आप पढ़ेंगे या आपने ख़ुद इसको लिखा है। तो इसको बहुत काट छाट के इख्तिसार मुख्तसर करके लिखा, इसी मसनवी की खुसूसियत आगे चल के हो गई थी। इसलिए करेक्ट ऑप्शन 3 होगा गुलज़ार नसीम के लिए, इजाज़ व इख्तिसार मुख्तसर। क्वेश्चन नंबर 15, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये मशहूर कौल ज़माना है, ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। तो करेक्ट ऑप्शन 3। आइए क्वेश्चन नंबर 16 में, किसके दीवान की आमद से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ? कुली कुतुब शाह, बुलबुल, अमीर खुसरू, वली दक्नी। जैसा कि हम जानते हैं कि वली दक्नी जो है 1700 ईस्वी में, गालिबन 1719 में ये दिल्ली में आए हैं और इन्हीं की वजह से दिल्ली में उर्दू शायरी का बाकायदा आगाज़ हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, हम्द किसे कहते हैं? खुदा की तारीफ़, नबियों की तारीफ़, वली की तारीफ़, सहाबाए किराम की तारीफ़। जैसा हम देखते हैं कि हम्द से ताल्लुक़ खुदा की ज़ात होती, उसकी हम्द सना करना। ऑप्शन नंबर बी। आइए क्वेश्चन नंबर 18 में, खुदा की तारीफ़ इसमें जिसमें अल्लाह की जो है हम्द सना की जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, उर्दू खड़ी बोली से पैदा हुई, ये नज़रिया किस मुहक्किक का है? तो ये नज़रिया जो है, जैसा कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद नहीं है चूँकि उन्होंने ब्रज भाषा को बताया, नसीरुद्दीन हाशमी ने जो है दक्कन को बताया, सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध को बताया है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन मसूद हुसैन खां का नज़रिया। क्वेश्चन नंबर 19, वजह बेगानगी नहीं मालूम, तुम जहाँ के हो वहाँ के हम भी हैं। इस शेर में किस नुक्ते पे ज़ोर दिया गया है? जैसा कि हम देखते हैं वहदतुल वजूद, वजूदियत, वहदतुल शुहूद, बेखुदी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं सही होगा, वहदतुल वजूद यानी अल्लाह को एक और एकता मानना। नंबर बी में वजूदियत है, पाया जाना। नंबर 3 है वहदतुल शुहूद यानी शहादतों में एक हो, बेखुदी इसका कोई मतलब नहीं। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, वजूदियत पर ज़ोर दिया जाता है, पाया जाना। अगला है तसनीफ़ और फ़लसफ़ा कलाम गालिब का मुसन्निफ़ कौन है? तो शौकत सब्ज़वारी, अब्दुर्रहमान बिजरौनी, कलीमुद्दीन अहमद, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए होगा, शौकत सब्ज़वारी। फसाने आज़ाद का मुसन्निफ़ कौन है? पंडित रतन नाथ शाह। इसमें करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 22, कसीदा गोई के लिहाज से कौन सा शायर मशहूर है? आबरू, सौदा, ज़ौक़, गालिब। सौदा को जो है सर फहरिस्त, कसीदे के सेहरा अव्वलियत जो है, सेहरा जो है सौदा के सर है। उसके बाद हस्ब मरातिब को देखते हुए ज़ौक़ का नंबर आता, तो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा, सौदा। क्वेश्चन नंबर 23, मुक्र शायराना किस शायर की कलाम की खुसूसियत है? ये दर्द, सौदा, मीर, मोमिन। करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 होगा, मोमिन। क्वेश्चन नंबर 24, गंज हाय गिरा माया किसकी तसनीफ़ है? तो आया देखते हैं, ये खाकों का मजमुआ है। रशीद अहमद सिद्दीकी, कन्हैया लाल कपूर, मुमताज़ मुफ्ती, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 25, फैज़ू किस नाविल का किरदार है? इब्नुल वक्त, उमराव जहादा, फिरदौस बरी, तौबतुन नसूह। करेक्ट ऑप्शन 2,
उमराव जहादा का है। इसका रोल जो है डाकू का है, चोरी करता है। ये फैज़ू डाकू के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, जुरात कहाँ पैदा हुए? लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद। तो जुरात जो है दिल्ली में पैदा हुए हैं। वैसे इनका तो ताल्लुक़ दबिस्तान लखनऊ से होता है, चूँकि कत्ल गारत 1857 के बाद दिल्ली को खैर बात करके ये लखनऊ की तरफ आए थे। क्वेश्चन नंबर 27, शेरुल अजम का मुसन्निफ़ कौन है? शौकत सब्ज़वारी, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, गालिब, शिबली नोमानी। करेक्ट ऑप्शन शिबली नोमानी। आइए देखते हैं दरियाए लताफ़त। अगला क्वेश्चन 28, दरियाए लताफ़त जो है का ताल्लुक़ किससे है? ज़बान व क़वायद, शायरी, तनक़ीद, तहक़ीक़। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए क़वायद व ज़बान से, ज़बान व क़वायद से ये पहली किताब क़वायद की मानी गई। अगला सवाल 29, फ़ानी का पूरा नाम क्या था? फ़ानी का पूरा नाम शौकत अली ख़ां था। शौकत अली ख़ां फ़ानी तख़ल्लुस है। शौकत इनका पहला भी तख़ल्लुस है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30, जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसीह है, किसने कहा? सिब्ते हसन, डॉक्टर मोहम्मद हसन, वहीद अख्तर, शमसुर रहमान फारूकी। चारों का तज़किरा जो है नाक़िदून में होता है। ये करेक्ट ऑप्शन वहीद अख्तर का है कि जदीदियत तरक्की पसंदी की तौसीह है। आइए देखते हैं 31 क्वेश्चन, सबसे पहला साहिब दीवान शायर कौन था? नुसरती, वली, कुली कुतुब शाह, मुल्ला वजी। करेक्ट ऑप्शन 3 होगा कुली कुतुब शाह। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम पर कौन सा नावल लिखा गया? अंदाता, ये कहते बंगाल पे लिखा गया है। टेढ़ी लकीर, असमक चुगताई का ये है, इसमें तो है नहीं। आगन गुरेज, तकसीम हिंद पर आगन जो है लिखा गया। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 होगा इसमें सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33, अफसाना बजूका में होरी का किरदार किस मुसन्निफ़ ने पेश किया है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बताएं। इसमें बेदी का ये अफसाना है ही नहीं। ये आपसे पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन ही गलत है। ये पूछा जा रहा है कि अफसाना बजूका किस अफसाना निगार का अफसाना है? तो बेदी का नहीं है, ये सुरेंद्र प्रकाश का। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 होगा, सुरेंद्र प्रकाश का ये अफसाना है बजूका। आइए देखें 34 में मुंदरजा ज़ैल में से सबसे पहला अखबार किसने निकाला? तो मौलवी मोहम्मद बाक़िर साहब ने पहला अखबार निकाला था। करेक्ट ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर 3 पे देखिए, मोहम्मद हुसैन आज़ाद के ये वालिद हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम क्या था। आइए क्वेश्चन 35, इनमें से किसको कसीदे का अजीम शायर कहा गया? तो ये जो है बात हो रही फ़ारसी कसीदा गो शौरों में अनवरी, हाफिज़, बेदल और शादी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा अनवरी। अगला 36, अल्लामा इकबाल ने किस फ़ारसी के साथ जावेद नामा में अफलाक की सैर की है? सादी, रूमी, हाफिज़, बेदल। जैसा कि हम जानते हैं ये फ़लसफ़े के उस्ताद रहे हैं रूमी, तो अल्लामा इकबाल ज़्यादा बहुत मुतासिर थे। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 रूमी। 37 क्वेश्चन नंबर, सादी और हाफिज़ का वतन एक है, वो कौन सा है? जैसा कि हम जानते हैं हाफिज़ शिराज़ी, शेख सादी शिराज़ी कहा जाता है। तो इनका असल वतन बगदाद, बल्ख, समरकंद, शिराज़। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन 4 होगा शिराज़। 38 क्वेश्चन, महाभारत का ताल्लुक़ इनमें से किस सिन्फ से है? रज़मिया, तरबिया, अलमिया, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि रज़मिया का ताल्लुक़ रज़्म से है, जंग व जिदाल लड़ाई से होता है। और इसका मामला ज़्यादातर हम मसनवियों में देखते हैं कि बज़मिया मसनवी और रज़मिया मसनवी होती है। तो ये जो है रज़मिया मसनवी है, रज़्म के माने लड़ाई। महाभारत की जंग हुई थी। देखिए 30 क्वेश्चन नंबर 39, कलीलतो दुमना सबसे पहले किस ज़बान में लिखी गई थी? तो इब्रानी ज़बान, अरबी, संस्कृत और फ़ारसी। तो ये जो है आपका संस्कृत
ज़बान में लिखी गई थी। करेक्ट ऑप्शन 3। लिसानुल गैब का लक़ब किस शायर के लिए मखसूस है? खाकानी, बेदिल, उमर खय्याम, हाफिज़। करेक्ट ऑप्शन 4, हाफिज़ के लिए लिसानुल गैब का लक़ब दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 41, फ़ारसी तनकीद पर पहली किताब कौन सी करार दी जाती है? जिसमें हम देखते हैं चार मकाला, हदायकुस सहर, शेरुल अजम, काबूसनामा। इसमें करेक्ट ऑप्शन 4, काबूसनामा। 42 क्वेश्चन नंबर, अहद जाहिलियत का सबसे बड़ा और मकबूल शायर कौन है? अशरा, अमरुल कैस, इब्नुल कुलसूम या नाबिगा। तो अमरुल कैस को जो है अरबी ज़बान का पहला शायर माना गया अय्याम जाहिलियत को। तो करेक्ट ऑप्शन 2 होगा। 43, संस्कृत की किस किताब में रस का नज़रिया पेश किया गया है? रामायण, अभिज्ञान शाकुंतलम, नाट्यशास्त्र, महाभारत। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, नाट्यशास्त्र। ये नेट में भी क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। इसमें जो 9 रस होते हैं उसका तस्करा किया गया है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 44, सूफ़ी शम्स तबरेज़ किस अज़ीम शायर के रहनुमा व उस्ताद थे? एक नाम पूछा गया है शागिर्द उस्ताद का, अनवरी, सादी, हाफिज़, मौलाना रूम। तो ये जो है मौलाना रूम के उस्ताद रहे हैं सूफ़ी शम्स तबरेज़। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 45, कौन सा फ़ारसी शायर अपनी रुबाइयों की वजह से मकबूल हुआ? तो बहुत आसान क्वेश्चन, उमर खय्याम, शेख तारुद, सनाई या सादी। तो उमर खय्याम जो है फ़ारसी रुबायात के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 46, शाहनामा किसकी शाहकार तसनीफ़ है? रौदकी, फिरदौसी, अमीर मुअज़्ज़ज़ी, शाहनामा। तो इसमें सही ऑप्शन नंबर 2 होगा, फिरदौसी। क्वेश्चन नंबर 47, रुस्तम किस मसनवी का किरदार है? कलील और दुमना का, बोस्ता का, हश्त बहिश्त का, शाहनामा का। तो देखते हैं रुस्तम और शोहरा मशहूर है, तो ये सही ऑप्शन का शाहनामा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, अभिज्ञान शाकुंतलम का तर्जुमा उर्दू में किसने किया? कुदसिया ज़ैदी, ग़ुलाम रब्बानी ताबा, नज़्म तबातबाई, ज़ाहिदा ज़ैदी। करेक्ट ऑप्शन ए होगा, कुदसिया ज़ैदी। क्वेश्चन नंबर 49, गालिब ने किस फ़ारसी शायर की रविश पर अपने उर्दू कलाम की इब्तिदा की थी? अनवरी, हाफिज़, बेदिल, फिरदौसी। करेक्ट ऑप्शन 3 होगा, बेदिल की तर्ज पर उन्होंने अपनी शायरी की इब्तिदा की। लास्ट क्वेश्चन नंबर 50, सरापा का इस्तेमाल किस सिन्फ में होता है? मरसिया, मसनवी, कसीदा, वासुक। जैसा कि हम देखते हैं मरसिया के अज्ज़ाए तरकीबी में 8 होते हैं। इसका पहला जो है चेहरा होता है, दूसरे नंबर पे सरापा। तो ये जो है मरसिए के अज्ज़ाए तरकीबी का जुज़ है। करेक्ट ऑप्शन ए होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो के साथ।